السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور بیٹیوں اور بھائیوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ بسم اللہ کر کے شروع کرتی ہوں۔ تو کل میری ٹاپک تھی کہ گھر آپ کو کہاں لینا چاہیے، شہر میں لینا چاہیے یا تھوڑا شہر سے دور، رینٹ پہ اللہ سب کو اپنا گھر دے، رینٹ پہ تو شہر سے دور لیں گے تو بہت بچت ہوگی۔ تو آپ کو سمجھے کہ آپ کا 10,000 15 12 13,000 آپ کا کرائے پہ چلا جائے گا، باقی بچے گا آپ کے پاس کتنا؟ 23-24,000 25,000 ایسے ہی بچے گا، 22-23,000 بچے گا، کیونکہ اگر اس میں سے کیا کہتے ہیں 35 میں سے 10 ہٹا دو تو بچتے کتنے ہیں؟ سمجھے 20,000 22,000 ہی بچے گا، کیونکہ گرمی ہے، گرمیوں میں تو بجلی چاہیے ہوتی ہے، 2-3 ہزار روپے تو بل آ ہی جاتا ہے۔ تو یہ ہے، پھر بھی آپ خواتین اگر باہر نہیں جاتی، کچھ نہ کچھ کرے، گھر میں بیٹھے کچھ نہ کچھ سلائی کڑھائی کچھ بھی کر سکتے، مہندی لگانا، آپ مہندی لگا سکتی ہے، سلائی بہت چل رہی ہے آج کل، بہت بیوٹیشن کا کام کر سکتی ہے آپ تھوڑا بہت، کیونکہ ان علاقوں میں بیوٹیشن کا مطلب لوگ جاتے نہیں ہیں، اس لیے کہ کافی دور ہوتے، تو آپ وہیں پہ کچھ کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جس کی اگر چاہت ہو نا کام کی تو وہ کہیں پہ بھی کر سکتے، وہ پتھروں کے اندر بھی کام شروع کر سکتے ہیں، یہ ہے۔ اور ہمارے اللہ تعالیٰ فرماتے تو کہیں پہ بھی تجھے میں روزی دینے والا ہوں، نیت اچھی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کا گھر بڑا ہے، تھوڑا سا مرغیاں پال لیں، صحن بڑا ہے، ہاں تھوڑا صفائی رکھنی پڑے گی، کیونکہ صفائی چاہیے ہوتی مرغی میں، تھوڑی سی دیسی مرغی پال دیں، آپ انڈا سیل کر سکتے ہیں۔ آپ مذاق مت اڑائیے گا میرا، میں یہ سچ کہہ رہی ہوں۔ اگر بہت بڑا گھر ہے، تھوڑا سا سبزی لگا لے، تھوڑی سی سبزی جیسے ترئی لگا لی آپ نے، بھنڈی لگا لی، آلو وغیرہ تو نہیں لگ سکتا کیونکہ یہ بہت لمبا پروسیجر ہوتا ہے آلو کا، 3-4 مہینے 5 مہینے کا ہوتا ہے، وہ نہیں کر سکتے آپ۔ تو یہ ہے، اچھا آپ کا اگر 36,000 روپے سیلری ہے، آپ کا چلا جاتا ہے وہاں پہ 12-13 ہزار، تو بچتا ہے 22-23 ہزار۔ 22-23 ہزار میں آپ کیا کریں گے؟ آپ اس حساب سے آپ کو چلنا ہوگا۔ آپ راشن کوشش کریں آپ راشن 7,000 ملے، ان ٹوٹل 7,000، اس سے نہ زیادہ اوپر نہ کم۔ اگر آپ 6 لوگ ہیں، 4 بچے 2 بڑے، میں 6 لوگوں کا بتا رہی ہوں کیونکہ ہم خود 6 لوگوں کی فیملی ہے، تو آپ تھوڑا سا چاول بھی لے لیں، تھوڑا سا آٹا لے لیں۔ جیسے آپ کے گھر میں اگر 30 کلو آٹا جاتا ہے ڈیلی کا، تو آپ 20 کلو لے لیں، 20 کلو آٹا لے لیں، اور سمجھے کہ 10 کلو آپ چاول لے لیں، کیونکہ بچوں کو چاول بھی بہت پسند ہے۔ آپ مٹر پلاؤ بنا لیں، آلو پلاؤ بنا لیں، اور پھر آپ دالیں لے لیں، 2-3 قسم کے دال، آدھا کلو کر کے، ادھر 2 کلو ہو جائیں گے۔ ہاں مجھے پتہ ہے دالیں بہت مہنگی ہے، 300 سے 400 روپے کلو ہے۔ آپ اگر 4 دال لیں گے، فرض کریں 400 روپے کلو، 4 دال لیں گے، 800 کی آپ کی دال آ جائے گی، 800 روپے کی آپ کی دال آ جائے گی۔ اور اگر آپ جیسے تیل بہت خرچ آپ ایک مائنڈ بنا لیں کہ 3 کلو میں مجھے چلنا ہی ہے، کسی صورت میں بھی 3 کلو میں چلنا ہے، اس میں سے بچانا بھی ہے، یہ سوچیے گا۔ اس میں سے اگر جیسے کہ بچوں کے لیے اگر پاپڑ تلنا ہو، کچھ ہو، اس میں سے آدھا کلو آپ الگ کر کے رکھ دیں۔ آپ سوچیں 2.5 کلو 2 کلو میں مجھے چلنا ہے، آپ چاہے تو کیا کچھ نہیں کر سکتی، ہم خواتین بہت کچھ کر سکتے۔ الحمدللہ ہمیں اللہ نے اتنا وہ دیا ہوا ہے ٹیلنٹ کہ ہم 10 کلو میں بھی چلا سکتے ہیں اور 1 کلو میں بھی چلا سکتے ہیں، الحمدللہ۔ اور مسالہ 50-50 کی پیکٹ آتی ہے، 4-5 پیکٹ لے لے گرم مسالے کی، 4 لے لیا تو 200، 5 عموماً 5-6 ہی ہوتے گرم مسالہ، اور اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ تو یہ
5 ले लिया तो 250 रुपये की। हर चीज़ आप सोच के खर्च करें, हर चीज़ आप कोशिश करें वो 7,000 में से भी आप 500 रुपये हटा लें। आप अपने माइंड में रख लें आपको 6,500 का ग्रोसरी करनी है या राशन उठाना है 6,500 का। तो आप ऐसा, और आप दूसरी बात, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में न डालें। प्राइवेट स्कूल में मत डालें, क्योंकि प्राइवेट स्कूल का खर्चा आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। आप गवर्नमेंट स्कूल में डाल दें। हर मोहल्ले में एक मदरसा होता है फ्री, वहाँ डालें, फ्री मदरसा होता है। गवर्नमेंट के स्कूल में आपको कोर्स, यूनिफॉर्म, शूज़ का मुझे नहीं पता, शूज़ नहीं मिलते। हर साल यूनिफॉर्म भी देते हैं, कोर्स देते हैं, और आपको सिर्फ ट्यूशन का थोड़ा खर्चा होगा आपका। और अगर आप पढ़ी हुई है तो आप अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएं, कहीं और ना दे। आपके 1,000 रुपये यहाँ बचत हो जाएंगी। आप ये सोचें, आपके 1,000, आप कोशिश करें कि आप कहाँ कहाँ से पैसा बचाना चाहते हैं। आपने तो घर का किराया समझे 14,000 ही लगा ले, क्योंकि 15,000 ही लगा ले आप, 21,000, 7,000 की आ जाएगी राशन। बचेगा आपके पास कितना बचेगा? 13,000 या 14,000 बचेगा। इसमें आपको लेना है कच्चा बाज़ार, रोज़मर्रा के जो खर्चे होते थोड़े बहुत। दूध आप डेली का 50 का ले लें, ज़्यादा नहीं चाहिए, डेली का 50 का ले। या तो आप ऐसा करें, जो सूखा दूध होता है, खुश्क दूध 2,000 रुपये किलो है, 1 किलो आप उठा लो, पूरा महीना आराम से चल जाएगा। कोई मेहमान आता जाता है, कुछ आता जाता है, आप उसी से चाय बना लें। एक पत्ती ले लें, पत्ती थोड़ा कम इस्तेमाल करें, ज़्यादा पत्ती सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, थोड़ा कम हाँ, कोई कड़क चाय पीते, लेकिन आदत करें कि थोड़ा सा हल्का हाथ रखें। कोई कंजूसी नहीं है, अपने पैसा बचाना, बचत करना कोई कंजूसी नहीं है। कोई ये नहीं सोचेगा कि ये मैं करूँगी तो ये क्या होगा, ये नहीं करूँगी तो ऐसा कैसे होगा। हो जाता है, हर चीज़ चल जाता है। इतने बड़े बड़े लोग दुनिया से चले गए, दुनिया चल रही है, कुछ नहीं होता। और फिर बच्चों को स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, मोहल्ले में मदरसा होता है, फ्री मदरसा। हमारे इलाके में 3 मदरसा है, बिल्कुल फ्री, माशाल्लाह से काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं। हमारे मोहल्ले में 3 स्कूल है गवर्नमेंट की, माशाल्लाह। वहीं से बच्चे हमारे जो लोअर तबके के हैं, मिडिल क्लास के हैं, वहीं से पढ़ते हैं। ज़रूरी नहीं कि प्राइवेट में डालें, गवर्नमेंट की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। आपके बच्चे में अगर टैलेंट होगी ना, वो कहीं पे भी पढ़ लेगा और अच्छे से अच्छे नंबरों में पास होगा। आप ये नहीं सोचो कि मेरे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल सही नहीं है, ये नहीं। आपको थोड़ा सा तवज्जो देना होगा, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश के कोर्स बाद में भी हो सकते, कुछ ऐसा नहीं है। जो बड़े बड़े जो मौलाना है, वो उन लोगों को इतनी इंग्लिश थोड़ी ना आती है। वो कमा रहे, माशाल्लाह, पढ़ा रहे, मदरसा चला रहे, हर चीज़ चला रहे। अल्लाह ने उनकी रोज़ी में बरकत दी हुई है। तो इंग्लिश कोई हमारा फ़र्ज़ नहीं है सीखना, कि हमें सीखना ही है, हम पे फ़र्ज़ किफ़ाया हो गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर आप पढ़ी लिखी नहीं हैं तो आप एक ट्यूशन रख सकती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आजकल के दौर में बच्चे इतना मेहनत, पहले के हम तो, हमारे ज़माने में तो अगर ट्यूशन किसी ने पढ़ा लिया तो हम कहते ला इसके बच्चे को ट्यूशन में डाला हुआ है। हम ऐसे हैरत से बोलते थे कि इसके बच्चे को ट्यूशन में डाला हुआ है। हमारे मतलब जब हम छोटे थे, हमारे ज़माने जब हम छोटे थे, हमारे अम्मी वगैरह, हमारी बहनें बोलती थी इसके बच्चे ट्यूशन पढ़ते। हम खुद हैरान हो गए थे, लो इसके बच्चों को छुपा छुपा के ट्यूशन में भेजते थे। और आज तो हर गली में ट्यूशन सेंटर। पहले अपने माँ बाप पढ़ाते थे बच्चों को और बहुत अच्छे नंबरों में पास आते थे। तो ये है। और फिर कच्चा बाज़ार, आपके पास एक फ्रिज होना ज़रूरी है। अगर आप दूर रहते हैं शहर से थोड़ा सा,
क्योंकि हर रोज़ रोज़ तो आना जाना मुश्किल है। आप कोशिश करके थोड़ी VC डाल के एक फ्रिज ले सकती हैं आप। एक छोटा मोटा फ्रिज ले लें। और फ्रिज ये नहीं कि रेगुलर चलाए, नहीं, क्योंकि आपको बिल पे करना होगा। फ्रिज 7 बजे से लेके 11 बजे तक ऑफ रखें। मैं तो कहती हूँ रात भर ऑफ रखें। फिर सुबह में फजर की नमाज़ पढ़ के, अगर पानी वानी मोटर आपके है, हैंड मोटर वगैरह है आपके पास, तो वो पानी वानी भर के फिर एक चीज़ ऑन करें। या इस्त्री करनी हो, इस्त्री वगैरह करके फिर आप फ्रिज ऑन करें। दोनों तीनों एक साथ में करेंगे, यूनिट ऐसे गिरते हैं ना, बहुत तेज़ी में गिरते हैं। अगर एक एक आप करेंगे ना, यूनिट बिल्कुल हल्का होगा और बिजली का बिल भी बहुत कम आएगा। आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो बच्चों को पढ़ाए, बच्चों के लिए आप 2000 रख ले, अलग से 2000 रख ले। 2000 आपने बच्चों के लिए रख ली। और क्या कहते, फिर आपके पास बचते कितने? 12,000। 12,000 में आपको लेना है, क्योंकि दाल तो आ गई है, दाल वगैरह आ गई है। क्योंकि रेगुलर तो सब्ज़ी और चिकन और गोश्त नहीं बनेगा। आप हफ्ते में एक दफ़ा गोश्त का कर लें। अगर आप लोग 6 लोग हैं तो आप 2 किलो गोश्त ले आए। 2 किलो गोश्त आधा आधा कर ले, आधा आधा किलो। ज़रूर नहीं कि हर रोज़ गोश्त खाना है, हर रोज़ चिकन खाना है, नहीं। आप 1 किलो चिकन ले आए, 1 किलो गोश्त ले आए। गोश्त यहाँ पे शायद हमारे यहाँ पे तो बगैर हड्डी का जो है ना 1000 रुपये किलो है, और हड्डी वाला 800 रुपये किलो है। तो आप बगैर हड्डी का ही ले आए, क्योंकि ये लोग हड्डी बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, बोटी वेट डालते नहीं। पहले ज़माना थोड़ी है ना, जब थोड़ा एहसास करते थे, चलो एक हड्डी डाल देते और बाकी गोश्त डाल देते। ये नहीं है, वो चीज़ नहीं है। मैंने उनसे गोश्त वाले से बात भी की थी कि पहले तो ऐसा नहीं होता था। अब तो आप आधा चर्बी डालते हो, आधा हड्डी डालते हो, और एक हिस्सा आप गोश्त का डालते हो, 2 हिस्सा आप हड्डी और चर्बी डाल देते हो। तो बोलते बाजी हम भी तो ख़रीद के लाते ना। मैंने कहा पहले के लोग भी ख़रीद के ही लाते थे, कोई फ्री में नहीं लाते थे। थोड़ा सा मैंने तल्ख लफ्ज़ों में बात की, चुप हो गया। तो फिर आपके मियाँ का ट्रांसपोर्ट का भी मैं बताऊंगी। आप कोशिश करके पूरे मंथली, जैसे घर का किराया वगैरह दे के हर चीज़ को तरीके से चलाएंगे ना, इंशाल्लाह हो जाएगा। अल्लाह ताला कर देता है। आप टेंशन बिल्कुल ना लें। पूरा आप कोशिश करें, आप 15 से 2000 बचाएं। ये भी मैं बताऊंगी किस तरीके से बचाना है। ये नहीं कि मैं नहीं बताऊंगी, ये भी मैं बताऊंगी किस तरीके से बचाना है। तो आप जो है ना, फिर कच्चे बाज़ार का आ जाते हैं। आप जैसे कि मार्केट चली गई, जैसे संडे बाज़ार में, संडे बाज़ार या गलियों में आते, संडे बाज़ार में जाएंगे तो आपको क्या चाहिएगा? किराया विराया चाहिए। अगर दूर है, अगर करीब है तो पैदल चले जाइएगा, अगर दूर है तो मत जाइएगा, क्योंकि नुकसान होगा। इसलिए आप गली मोहल्ले में आते रेडी वाले, आलू प्याज वाले, उनसे ले लें। आलू प्याज थोड़ा ज़्यादा करके, प्याज अगर महंगी है तो आप थोड़ा करके ले, ज़्यादा मत ले, क्योंकि फिर वो सड़ जाती है, ख़राब हो जाती है। आप सोचते हो कि मैं ज़्यादा ले लूँगी तो मेरी बचत हो जाएगी, नहीं, कोई बचत नहीं होती। आप 1 वीक का ले, जैसे 1 हफ्ते का ले, 1 हफ्ते का ले, फिर दोबारा 1 हफ्ते का ले। ऐसे आपके प्याज ख़राब नहीं होंगे, आलू भी ख़राब नहीं होंगे। क्योंकि गर्मी है, जाहिर सी बात है, लाइट जाती है बहुत, और हम रखे तो बाहर कब तक रखें, ख़राब होती है हर चीज़। ख़राब होने वाली चीज़ें उनके यहाँ पे इसलिए ख़राब नहीं होते दुकानदार मंडी में, क्योंकि वो स्प्रे करते हैं चीज़ सब्जियों में ताकि वो ताज़ी रहे। आलू हो, प्याज हो, फल हो, जो भी हो, उनके पास वो चीज़ है। तो हमारे पास तो नहीं है, हमारे पास एकदम से ख़राब हो जाती है। एक हफ्ता कर लिया अगर आप, तो आप कोशिश करिएगा आप 1-1.5 से 2000 बचाने की चीज़। आप अपने बच्चों को चिप्स, बाहर की चीज़ें तो बिल्कुल ना दे। हाँ, कभी कभी दे सकते हैं आप, कभी कभी दे सकते हैं आप। घर में पापड़ तल के दे दे, आलू की चिप्स बना के दे दे, तेल थोड़ा शैलो फ्राई करके, शैलो, मैं हमेशा चिप्स शैलो फ्राई में करती हूँ। बिल्कुल थोड़ा तेल, अगर बच भी जाए वो तेल मैं बाद में यूज़ कर लेती हूँ सालन में, मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं बाद में वो चीज़ तेल सालन में यूज़ कर लेती हूँ। तो चले, नेक्स्ट वीडियो आएगी कल इंशाल्लाह, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
آپ لوگوں سے درخواست ہے، دلی درخواست ہے، اور اگر نہیں کیا تو وہ آپ لوگوں کی مرضی ہے، لیکن میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ مجھے بہت لوگ اتنے پریشان ہوتے نا، مہنگائی ہے مہنگائی ہے. میرے لیے کبھی بھی مہنگائی نہیں رہی، میں نے اس حساب سے چلایا گھر کو، میرے لیے کبھی مہنگائی نہیں رہی، اللہ کا شکر الحمدللہ. ہم سوچتے کہ ہاں پہلے اتنا نہیں، پہلے سیلری بھی کم تھی، یہ سوچیے بہت کم تھی. اس ٹاپک پہ میں ایک مکمل ویڈیو بناؤں گی، ایک مکمل. تو چلے اللہ حافظ، سبسکرائب کیجیے گا میرے چینل کو.